I welcome all of my guests, investors, HNIs, and all of those who have interest in Mobilize. Let me give you a disclaimer first that this video is being recorded with the management of Mobilize App Lab Limited, whose IPO is bound to become in February 2026 only. This video is recorded for the purpose of dissemination of education about about the company. We are not inviting anyone for subscribing to the shares in the IPO. We are not advising anyone to subscribe or buy these shares. This management interview should be taken as a with the purpose of education and knowledge management. uh, I invite Mr. Ashish Sharma, who is Chairman and Managing Director of the company, to start this interaction. Thank you very much, sir, for joining. Uh, let's start with your journey with the Mobilize and what kind of problem are you trying to solve with this company? Right. Thank you, Kulbhushan sir. Thank you, CCB, for getting me to this forum. नमस्कार सर आपके सभी सब्सक्राइबर्स और दर्शकों को. बिफोर आई जंप इन कि हम मोबिलाइज में क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करता हूं अपने बारे में, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में और मोबिलाइज के बारे में. सर मोबिलाइज हमने 2013 में स्टार्ट की, बट मोबिलाइज शुरू करने से पहले का जो एक्सपीरियंस है और जो जर्नी है वो कुछ इस तरीके की है दैट आई वाज वर्किंग. आई स्टार्टेड माय करियर विद भारती एयरटेल, टू बी प्रिसाइज भारती एयरटेल इन 2004. It was a enriching experience because Bharti Airtel is a very large enterprise, and from there on, I moved on to Southeast Asia to work with some companies like Hewlett Packard, IBM, HP, etc. Back then, वो सब अपनी थोड़ी मैंने कुछ देशों की यात्रा की और फिर वहाँ पे काफी सारा टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिला. इंडिया वापस आके मैंने भारती इन्फ्राटेल जो अब इंडस टावर है उसको वापस ज्वाइन किया. When we were working with Bharti Infratel, I had opportunity to work on several very large enterprise projects like data center management, application development, and we were also because our outsourcing partner was IBM. तो जो पूरा IT setup था वो IBM देख रहा था, and I was responsible. I was on the other side because I was a customer then. So I had huge exposure of being a customer as well, being a vendor as well, and I have been on all side of table. So this experience was very, very enriching, and it helps me today also. Mobilize को एक strategic direction में ले जाने के लिए मुझे वो सारे experiences काम आते हैं जो मैंने अपने professional career में लिए. 2014 में जब हम लोग भारती इन्फ्राटेल में काम कर रहे थे तो वी हैड डेवलप्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन. 2012 रादर, आई वुड करेक्ट माई सेल्फ, इन 2012. इफ यू वुड रिमेंबर, जो उस टाइम पे जो मोबाइल फोन्स थे वो मोर और लेस नोकिया सिम्बियन ओएस वाले मोबाइल फोन्स थे जिनके कीपैड्स थे. देन नोकिया ने एक फोन लॉन्च किया था जो टच स्क्रीन फोन था. सर उस फोन की खास बात ये थी कि दैट यू कुड ओपन अप एप्लीकेशन. तो हमने एक मोबाइल ऐप बनाया था 2012 में भारती इन्फ्राटेल में, जिससे सो पर्पस उस ऐप का ये था. इफ यू वुड लुक एट भारती इन्फ्राटेल, दे हैव गॉट टॉवर्स. सो जो टॉवर्स हैं, टॉवर्स में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं. डीजी होता है टॉवर इटसेल्फ, फिर उसके अंदर शेल्टर होता है, बैटरी बैकअप होता है. तो कंपनी की परेशानी ये थी कि कैसे किस तरह से ये जो एसेट्स हैं, जो पूरे फिक्स एसेट हैं, बैटरी, डीजी एटसेट्रा, इन सबके इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट किया जाए. तो हमने एक मोबाइल ऐप बनाया 2012 में, उस टाइम पे जो कीपैड वाले फोन्स थे उनके लिए. और वो आइडिया इतना रेवोल्यूशनरी था कि हम वहां से लाखों एसेट्स का डेटा कलेक्ट कर पाए. And that was the spark where it started in 2013. We brought a application for schools, जहाँ पे हजारों बच्चे जो स्कूल्स में हैं और पेरेंट्स उनके स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे बिना रेगुलर कम्युनिकेशन किए, बिना स्कूल विजिट किए कैसे उस गैप को फिल किया जा सकता है. Then we moved forward. 2015 and 16, we were awarded a contract by a company known as Kirloskar. So Kirloskar was our first client when they awarded us a contract for asset data collection. तो हमारा जो enterprise asset management application है, जिसको हम आज के डेट में ऑप्सूट बोलते हैं, वो एप्लीकेशन हमने 2015 में 16 में बनाया और उसे केरला स्टेट में लगाया. सो पर्पस ये था कि केरला स्टेट में जितने भी एसेट्स हैं सारे हॉस्पिटल्स की, उन इक्विपमेंट्स का डेटा कलेक्ट किया जा सके. सो दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी स्टार्टेड, और वहां से लेके आज तक हम करीब 18 स्टेट्स में काम कर रहे हैं.
मोबिलाइज के दो So प्रोडक्ट और you हैं। started हाँ जी, Mobilize in 2013. 13 टू बी प्रिसाइज जी, 2013। Hmm. सो Okay. 2013 की जर्नी में हमने एड्यू प्रो सॉल्यूशन लॉन्च किया था, हमने ऑप्सूट सॉल्यूशन लॉन्च किया। एंड फाइनली जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती गई, हम लोग कभी भी सर्विस इंडस्ट्री में नहीं रहना चाहते थे, हम लोग हमेशा प्रोडक्ट लेके आना चाहते थे। हमने तीसरा प्रोडक्ट बनाया जो SCM प्रो था, जिसे हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉल्यूशन है। और जो चौथा सॉल्यूशन है वो HR प्रो है, विच इज HR ईवो इज व्हाट वी कॉल। HR ईवो की खास बात यह है कि वो करीब 58 कंट्रीज में यूज होता है और करीब 20 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और SCM प्रो जो है उसके अंदर आप बिडिंग सॉल्यूशन, परचेज सॉल्यूशन, प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन वो आप यूज कर सकते हैं। सो ये लगभग पूरी कहानी है मोबिलाइज की। ओके, सो आपने इंट्रोडक्शन में बिजनेस वर्टिकल्स को ऑलरेडी डिस्क्राइब किया। थोड़ा सा आप ये बताएं कि किसी एंटरप्राइज के लिए आपका जो सॉल्यूशन, आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इस्तेमाल होता है और कैसे कैसे बेनिफिट लेती हैं आपकी क्लाइंट कंपनीज। राइट सर। सर ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर इंडस्ट्री एग्नोस्टिक। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा एक प्रोडक्ट किसी एक ही इंडस्ट्री के लिए बना है। अब एक एग्जांपल है, लेट्स से HR सॉल्यूशन है। नाउ HRIS एज अ सॉल्यूशन इज यूज्ड अक्रॉस, whether it is education, government, non-government, large enterprises, small enterprises, everyone needs HRIS. Similarly, we have SCM Pro, which is the supply chain management solution. And similarly, we have got OPSUIT, which is typically used for FAR, fixed asset register, fixed asset management. ये solutions हैं। तो ये तीनों solutions इंडस्ट्री एग्नोस्टिक हैं, बहुत ही इंडस्ट्री में प्रूवन है, बिकॉज हमारे जो solutions हैं वो सारे solutions they have seen the day of light. They have already solved a lot of business problems. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कुछ नंबर्स में। जो हमारा ऑप्सूट सॉल्यूशन है उसमें हम लोग आज की डेट में जब हम अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, वो आगे फर्दर क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, तो टोटल 8.2 लाख एसेट्स, नियर अबाउट 1 मिलियन एसेट्स। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो ये नंबर आगे और बढ़ गया है। तो अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन एसेट्स हम केवल ऑप्सूट पे लॉन्च करते हैं, मैनेज करते हैं। हम HR प्रो पे अप्रोक्सीमेटली 4.5 लाख एम्प्लॉयज डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेज करते हैं। स्कूल्स में वी आर मैनेजिंग अराउंड 40,000 स्टूडेंट्स। सो दैट इज अवर एड्यू प्रो सॉल्यूशन। एंड सिमिलरली SCM प्रो। तो ये जो सॉल्यूशंस हैं ये बहुत ही लार्ज स्केल पे यूज होते हैं और सभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ERP की तरह काम करते हैं। परफेक्ट। सो अलग अलग वर्टिकल से आपका जो रेवेन्यू मिक्स है वो कैसे है, और आपका रेवेन्यू का मॉडल कैसा है? क्या वो पर एसेट, पर मंथ कैसे चार्ज करते हैं? राइट सर, मोबिलाइज के साथ एक बहुत अच्छी बात ये हुई इनिशियली से, आई मीन जब से हमने ये सॉल्यूशन डेवलप किया, ये सारे के सारे सॉल्यूशन SaaS मोड में काम करते हैं। और SaaS इंडस्ट्री जिस तरह से ग्रो हुई तो एक लार्जर एक्सेप्टेंस ये बना कि SaaS मॉडल जो है वो सब्सक्रिप्शन पे काम करता है। अभी आप फॉर एग्जांपल जो एसेट मॉडल है हमारा, जो ऑप्सूट सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, उसमें जितनी ज्यादा एसेट्स होंगी उतना ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू होगा, बिकॉज हम पर एसेट पर मंथ चार्ज करते हैं। तो दिस इज अवर ऑप्सूट सॉल्यूशन। सिमिलरली जो HR सॉल्यूशन है उसमें हम पर एम्प्लॉय बेसिस पे चार्ज करते हैं। एड्यू प्रो में हम लोग पर स्टूडेंट बेसिस पे चार्ज करते हैं। SCM प्रो हम लाइसेंस बेस पे चार्ज करते हैं, वो एक लंप सम कॉस्ट में आता है। द गुड पार्ट इज दैट वी डू नॉट हैव टू गो एंड फाइंड न्यू प्रोजेक्ट्स एवरी डे, बिकॉज हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हमें सब्सक्रिप्शन मॉडल पे हमारे साथ काम करते हैं। और ये हमारे मॉडल को, हमारे पूरे बिजनेस मॉडल को बहुत ही स्टेबल, प्रिडिक्टेबल और एग्नोस्टिक बनाता है। एंड द गुड पार्ट इज दैट client keep on paying us. I mean, the service is a very major factor in SaaS industry, and we are known for our services. आपका सबसे लॉन्ग टेन्योर क्लाइंट कौन है और क्लाइंट का रिटेंशन कैसा है? इफ यू कैन पुट सम लाइट ऑन दैट। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। हमने 2015-16 में क्लाइंट जोड़ा था किर्लोस्कर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। किर्लोस्कर टेक्नोलॉजीज ने केरला एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जो उन्होंने हमें फिर उसको आगे दिया। फिर उन्होंने राजस्थान शुरू किया, फिर उन्होंने उड़ीसा शुरू किया, फिर उन्होंने बिहार शुरू किया, फिर उन्होंने उत्तराखंड शुरू किया। और मैं 2026 की बात कर रहा हूँ। तो ये क्लाइंट पिछले 10 साल से हमारे साथ है और ये सारे प्रोजेक्ट्स हमारे साथ हैं।
तो ये एक Right. एक एग्जाम्पल है। डीपीएस फरीदाबाद हमारा एक एड्यू प्रो में क्लाइंट ऐड हुआ था 2016-17 में। वो 2016-17 से लेके आज हम डीपीएस आरके पुरम, जो देश का नंबर 1 स्कूल है, वो हमारा क्लाइंट है। डीपीएस नवी मुंबई है, डीपीएस फरीदाबाद है। तो डीपीएस सोसाइटी इन टोटलिटी हमें काफी सो हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव भी डीपीएस सोसाइटी के साथ बहुत बड़ा है, बिकॉज अभी हमने डीपीएस सोसाइटी के कुछ कोर स्कूल्स में काम शुरू किया है। और जिस तरीके से हमारा सॉल्यूशन आगे बढ़ रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम डीपीएस सोसाइटी के साथ सभी 250 स्कूल्स में आगे चल के काम कर पाएंगे। सो ये हमारा बिजनेस पर्सपेक्टिव है विद रिस्पेक्ट टू अवर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ये बिल्कुल ये दर्शाता है कि हमारे जो टेन्योर है, हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो 3 साल, 5 साल, 10 साल के टेन्योर में रहते हैं, बिकॉज ये लार्ज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी हमें रिसेंटली बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टेंडर अवार्ड हुआ था, और वो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो which reflects that every tender or every contract that Mobilize enters into, it's a long sustainable game, and we are not here for just another 1 month or 1 year or so, and we do not have to go and find new projects every time. That's a beauty of the business. आपका प्रोडक्ट इंडस्ट्री एग्नोस्टिक है, ज्योग्राफिक एग्नोस्टिक है, जी और डिफरेंट एसेट्स के साथ में, डिफरेंट स्कूल्स के साथ में काम करता है। अभी तक आपने मुझे 1 मिलियन एसेट्स के बारे में बताया। इसकी कोई लिमिटेशन है, या फिर ये आप इसको कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं? जरा सर, जब हमने स्केलेबिलिटी के राइट बारे में थोड़ा। एग्जैक्टली, सो वही, आई मीन, हमारा आंसर लगभग हमारी हिस्ट्री में छुपा है। हमने जब शुरू किया था ये बिजनेस अपना, तो हमारे पास कुछ 70,000 एसेट्स थे, और वो मल्टीप्लाई होकर आज 10 लाख एसेट्स हैं, एंड नियरली सेम सॉफ्टवेयर। नाउ द गुड पार्ट इज दैट वी आर नॉट डिप्लॉइंग एनी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें कोई फिजिकल सर्वर्स नहीं लगाने पड़ते, हमें कोई फायरवॉल्स नहीं लगानी होती, सब कुछ क्लाउड पे है। एंड द गुड पार्ट इज, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक बहुत ही सिक्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म माना जाता है, जो जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस में कंपनीज और गवर्नमेंट्स भी एक्सेप्ट करती हैं उसको। हमारा सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्लाउड के ऊपर है। नाउ एवरी टाइम वी हैव न्यू क्लाइंट्स ऑनबोर्डेड, we have to just plug in a new server, or we have to just increase some CPUs, या कोई RAM बढ़ाना है, या कोई storage बढ़ाना है, and we have one more client onboarded. So which typically reflects that our revenue is directly proportional to number of assets that we onboard. The larger the denominator, higher the revenue. So इसीलिए अभी हम पहले हेल्थ केयर डोमेन में हमने काफी फोकस किया, तो हम करीब 18 स्टेट्स गवर्नमेंट्स में अपना सॉल्यूशन दे पाए, ऑल्दो वो हम किसी के थ्रू देते हैं, डायरेक्टली नहीं देते हैं। बट ये रिफ्लेक्ट करता है कि कितना बड़ा स्केल सिस्टम झेल सकता है, या कितना बड़ा स्केल सिस्टम अफोर्ड कर सकता है। अभी हमने रिसेंटली एयरपोर्ट में काम करना शुरू किया, तो वो प्रोजेक्ट अभी छोटा है, लेकिन उससे एक पूरी एविएशन इंडस्ट्री खुल जाती है। तो अगर आप देखें, वी हैव गॉट 130 एयरपोर्ट्स इन इंडिया। नाउ दे हैव गॉट दोस मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एसेट्स दैट नीड टू बी टैग्ड. We recently started working for one of the urban local bodies in Haryana government. The tender is yet to be, I mean, the tender has been announced. We are yet to get into a formal contract. But look at the number of assets that urban local bodies have. हम फरीदाबाद में रहते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद इतना बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, हजारों लाखों एसेट्स हैं। फॉर एग्जांपल, रोड्स आर एसेट्स, ब्रिजेस आर एसेट्स, पार्क्स आर एसेट्स, एंड गवर्नमेंट इज वेरी मच फोकस्ड ऑन कैपिटलाइजेशन। कैपेक्स इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का बढ़ता जा रहा है। जब कैपेक्स होगा तो एसेट्स बनेंगी, और एसेट्स बनेंगी तो आपको ऑप्सूट चाहिए। दिस इज अवर फिलॉसफी। ग्रेट। जब एसेट्स मॉनिटरिंग की आप जो बात करते हैं, इसमें आपने एक बारी ये बताया था कि these all are IoT devices enabled, so that Yes. movement, performance, so वो थोड़ा बताएं कि ऑप्सूट एग्जैक्टली एसेट के साथ में क्या करता है? क्या ये सिंपल एक एसेट रजिस्टर है, या फिर ये कोई स्मार्ट सॉल्यूशन है? सर, ऑप्सूट जो है, वो उसकी स्टोरी स्टार्ट सिर्फ एसेट रजिस्टर से हुई, लेकिन उसके बाद जब सॉल्यूशन आगे बढ़ना शुरू हुआ, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जिनके बारे में हमने शायद बात ही नहीं की। ऑप्सूट के अंदर एसेट मैनेजमेंट है। अब आप सोचिए, एक एसेट की लाइफ साइकिल में क्या क्या होता है। कोई एसेट अगर डाउन होती है तो उस पर कंप्लेंट रजिस्टर होती है, किसी एसेट की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है, उसी एसेट का कैलिब्रेशन किया जाता है। मेडिकल इंडस्ट्री में कैलिब्रेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है हमारे सिस्टम के अंदर, जहां पे मेडिकल इक्विपमेंट नहीं होते, जैसे हमारा सॉल्यूशन माइक्रोसॉफ्ट में यूज करते हैं, क्वालकॉम, डेनफॉस, आपको सरप्राइज होगा गूगल तक में हमारा सॉल्यूशन यूज होता है। नाउ वी फील प्राउड कि हमारे क्लाइंट्स हमारा सॉल्यूशन माइक्रोसॉफ्ट और डेनफॉस और क्वालकॉम
गूगल में यूज करते हैं। तो जो एसेट की लाइफ साइकिल में होने वाले बहुत सारे चेंजेस हैं, वो सब कुछ इसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब मैं आपको कुछ फिजिकल एनवायरनमेंट की बात बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमें कहीं ऑक्सीजन मॉनिटर करना है, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हमें टेम्परेचर मॉनिटर करना है, ह्यूमिडिटी मॉनिटर करनी है, ये सब कुछ हमारा आईओटी डिवाइस से होता है। देन हमने ऑप्सूट को इंटीग्रेट किया जीपीएस डिवाइसेस के साथ। सो फॉर एग्जांपल, जो फील्ड में घूमने वाले टेक्नीशियंस हैं, उनकी मुझे लोकेशन ट्रैक करनी है कि उन्होंने आज पूरे दिन में कितना ट्रैवल किया, वो सब कुछ ऑप्सूट के थ्रू पॉसिबल है। अगर मेरे को आरएफआईडी डिवाइसेस लगाने हैं, आरएफआईडी चिप्स लगानी है, सो ऑप्सूट एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर ही नहीं है। इट इज एन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म विद लॉट ऑफ हार्डवेयर। सो इट्स अ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर पुट टुगेदर, दैट्स ऑप्सूट, एंड दिस इज हाउ ऑप्सूट इज फर्दर ग्रोइंग। मैं बस इस लाइन से एक समराइज और करने की कोशिश करूंगा कि ऑप्सूट पहले एक सॉफ्टवेयर था, तो वी यूज टू कॉल इट एज कंप्यूटराइज मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। इवेंचुअली ये ट्रांसफॉर्म हुआ इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, और इसकी जो जर्नी है, जो टारगेट है, वो एक बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम या फुल ब्लोन बीएमएस सॉल्यूशन के अंदर ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट आवर टारगेट इज। राइट। ओके। ज्योग्राफिकली क्या कोई लिमिटेशन है आपके प्रोडक्ट्स की, या फिर आप इसे इंटरनेशनली भी एक्सपेंड कर सकते हैं? सर, इंडिया की कोई शायद, मैं अगर मतलब आपके दर्शक इससे गुमराह ना हो, बट मेरे आंकड़े लगभग सही हैं कि इंडिया की लगभग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा सॉल्यूशन यूज हो रहा है, लगभग। तो दिस रिफ्लेक्ट्स दैट जियोग्राफी इज नॉट अ बाउंड्री। हमारा जो एचआर प्रो सॉल्यूशन है, वो हम हमारा सपोर्ट कैसा चलता है, हम ऑस्ट्रेलिया से शुरू करते हैं। एचआर प्रो जो है वो 58 कंट्रीज में यूज होता है, और ये मोबिलाइज की सर्विस कमिटमेंट को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ऑस्ट्रेलिया, देन चाइना, देन साउथ ईस्ट एशिया, देन इंडिया, देन मिडल ईस्ट, देन यूरोप, then US and Canada. So this is the entire spectrum of the countries where the solution is used. Now, हम इन्हें सर्विस कैसे करते हैं? हमारा एक फॉलो द सन मॉडल है। तो राइट जब ऑस्ट्रेलिया शुरू होता है से लेकर के कनाडा जब सनसेट करते हैं रात को 2 बजे तक, तो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक मोबिलाइज के एम्प्लॉयज काम करते हैं, एंड दिस इज द सर्विस कमिटमेंट। सो ये क्लियरली ये बताता है कि हमारे सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन नहीं है यूज करने की। वी कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। And that also describes the scalability and the TAM. Absolutely. Right. Absolutely. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं ऐड करूंगा, बिकॉज आपने जियोग्राफिक पॉइंट का बात किया। हर कंट्री की अपनी डेटा सिक्योरिटी की पॉलिसीज हैं। आपने सुना होगा यूरोप में जीडीपीआर यूज होता है, तो हमारा सॉफ्टवेयर जीडीपीआर कंप्लायंट है, जो अपने आप में बहुत ही मुश्किल नॉर्म है फॉलो करना। इंडिया अपना लॉ लेके आ रहा है डीपीडीपी, विच इज डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉ, राइट। तो डेटा का जो लोकलाइजेशन है, हमारे सॉल्यूशन इस तरह से बने हैं कि हमने डेटा का लोकलाइजेशन भी टेक केयर किया है। So which means that this adds to our geographic alignment and the languages. So software is available in 20 different languages, which makes it more agnostic to the adoption to that particular localization. Sorry. Right. The next thing which I wanted to ask is, what is the I would say disruption, what is happening in technology all over the world? Is it affecting you? Is it supporting you? What is the impact on Mobilize? Right. Sir, हम इस बारे में डिस्कस कर ही रहे थे कि डिसरप्शन से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। एग्जैक्टली डिसरप्शन से कभी भी बिजनेसेस बंद नहीं हुए। जो भी आईटी इंडस्ट्री एक एआई का रेवोल्यूशन देख रही है, इनफैक्ट कल हम न्यूज में देख रहे थे कि क्लॉड ने कुछ प्लगइन्स लॉन्च किए, जिससे पूरी सैस इंडस्ट्री में काफी नीजक रिएक्शन देखा गया। तो वो नीजक रिएक्शन की तरह ही देखने की जरूरत है, बिकॉज आईटी इंडस्ट्री है, वो अगर एआई को अडॉप्ट कर ले, जैसे मोबिलाइज ने अडॉप्ट किया, तो मोबिलाइज ने पिछले 6 महीने में या पिछले साल भर में आपको मैं ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि 40% ऑफ द डेवलपमेंट जो है वो आज की डेट में एआई कर रहा है मोबिलाइज में।
और ये लगभग वही स्टैंडर्ड है जो माइक्रोसॉफ्ट फॉलो कर रहा है या गूगल फॉलो कर रहा है। इनफैक्ट आपको सरप्राइज होगा कि एंथ्रोपिक, जिसकी वजह से ये पूरा कार्नेज हुआ, उनका 100% कोड जो है वो एआई लिख रहा है, ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं। हालांकि कुछ मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी। अब ये मोबिलाइज को कैसे इफेक्ट करेगा? मोबिलाइज 100% कमिटेड है एआई टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन में। और ये मैं इसे एक टेक्नोलॉजी के बून की तरह देखता हूँ। हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हमारे हर एक लैपटॉप के ऊपर। जो हमारे डेवलपर्स हैं उनको हमने एआई के लाइसेंसेस दिए। अभी हमने रिसेंटली जीपीयू परचेज किए तो कि ताकि हम हमारे एप्लीकेशंस को जीपीयूज पे टेस्ट कर पाएं। और वो टेस्टिंग करने के बाद हमने अपने क्लाइंट्स को कुछ एआई फीचर्स ऑफर करने शुरू कर दिए हैं जो हमारी एप्लीकेशंस के अंदर बिल्ट इन हुए हैं। तो मैं इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ और मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में ये हमें दो चीजों से इफेक्ट करेगा। पहला, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और दूसरा, हमारा सेल्स बढ़ेगा। Perfect. Okay, so now coming next to because your products are already developed, they are in operation. So what you are going to do with the IPO money? How you will grow your company with this IPO money? सर, हमने अपने डीआरएचपी के अंदर जो हमारे प्रोसीड्स हैं, वो प्रोसीड्स में हमने ये डिक्लेयर किया है। देयर आर 4 ऑब्जेक्ट्स जो हमने डिक्लेयर किए हैं। पहला ऑब्जेक्ट है कि हमारे प्रोडक्ट तो डेवलप हो चुके हैं, बिकॉज वी हैव बीन वर्किंग ऑन अवर प्रोडक्ट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके एनहेंसमेंट के लिए, या यानी उसको टेक्नोलॉजी के कर्व में हमेशा सबसे आगे रखने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी हायरिंग करेंगे। सो वी वांट टू हायर टैलेंट एंड वी वांट टू कीप अवरसेल्व्स अहेड ऑफ द कर्व। So that is one significant investment that we are going to do. Second investment is towards the sales and marketing. हम अभी डिस्कस कर ही रहे थे कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हमें रिपीट बिजनेस दे रहे हैं, मार्क्वी क्लाइंट्स हैं। बट उतने से अब शायद बात बनेगी नहीं, बिकॉज हमें बाहर जाने की जरूरत है, हमें नए मार्केट्स ओपन करने की जरूरत है, हमें नए क्लाइंट क्रिएट करने की जरूरत है, ताकि हम अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई और डे रिस्क भी कर सकें। ये हमारी सेकंड स्ट्रेटेजी है, और उसी लिए हमने सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोसीड्स भी डिक्लेयर किए हैं। थर्ड पॉइंट इज कि हमें वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स करने के लिए या बाहर रीच आउट करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने बताया, हमने जीपीयूज परचेज किए हैं। अभी जीपीयूज थोड़ा कॉस्टली अफेयर है, आगे चल के टीपीयूज आएंगे और टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क आगे बढ़ेगा। तो हमने एक सिग्निफिकेंट एरिया जो है वो प्रोसीड्स टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा है। एंड फोर्थ इज अवर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस इन्वेस्टमेंट। So these are 4 areas where we are going to invest the IPO proceeds. Your last year's revenue was approximately 16 odd crore rupees. Right. That's right. After this money, how do you see your company growing in future for over, say, 5 years? In percentage terms, how much can you grow? सर, मोबिलाइज का अगर आप हिस्ट्री चार्ट देखें विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ, 2023 वी वर 6 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 6.8 और 7 करोड़ हमारा टोटल रेवेन्यू था। 2012 2024 we multiplied to 12 crores. 2025 we grew to 16 crores. I'm sorry for all this. I'll just do a quick repetition. In 2023 we were 7 crores. In 2024 we were 12 crores. In 2025 we were 16 crores. So Mobilize has been virtually multiplying in a span of around 1.25 years approximately. That's our growth chart. So we foresee a similar growth chart if we do not get into IPO. But with this IPO proceed, with this IPO money, we foresee that we have increased our target. We have increased our revenue forecasting. So हम लोगों का जो minimum target है वो FY26 का, that is around 30 CR. So in total revenue that we foresee, and this is only going to multiply by the similar percentage in times to come. Okay, and about the margins, will you be able to maintain your 35% 30%, net, yeah. net Yes. profit So in margins? fact, yes, the opportunity is huge rather, because सॉफ्टवेयर जब एक बार बन जाता है तो SaaS इंडस्ट्री उसको यूटिलाइज करती है और ऑपरेटिंग लीवरेज काफी हैवी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अभी आज की डेट में जो मार्जिन है वो 30 to 35% के बीच में है, और ये आगे बढ़ सकता है विद एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। एआई आएगा, हाँ, एआई की मदद से। बट हमारा प्लान कि कोई एम्प्लॉय को रिट्रेचमेंट का नहीं है। वी आर नॉट प्लानिंग टू मूव अवर एम्प्लॉयज, वी आर ओनली गोइंग टू ओपन अप न्यू स्ट्रीम्स। हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि हम लोग रोबोटिक्स में काफी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। रोबोट्स इंटीग्रेशन
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारे न्यू स्ट्रीम्स जो हैं वो खुलेंगे मोबिलाइज के लिए विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और प्रोडक्ट लाइंस भी आगे इंक्रीज होंगे। Uh, you said that you will invest a lot on employees. So what is the trend in your company? How many technical people you have, and what is the attrition rate in your company? Mobilize is focusing a lot on its people. So, for example, we invest on their training, we invest on their upskilling, etc. We also keep on shuffling them between the projects so that new thoughts and new ideas can be shared. In last year, our average attrition was 13%, which was well below industry average or somewhere near industry average. पर IT industry में attrition rate थोड़े से ज़्यादा होते हैं, पर Mobilize has been blessed and has been able to keep the flock together. So हमारा जो attrition rate था वो करीब 13% के आसपास था। Okay. Um, can you for the benefit of the listeners, can you give some pointers which make your company unique or different from others? डेफिनेटली सर, मैं एक छोटा सा एग्जांपल कोट करने की कोशिश करता हूँ। किस सेगमेंट में मोबिलाइज ऑपरेट करती है? मोबिलाइज ऑपरेट कर रही है एक ऐसे सेगमेंट में, सो फॉर एग्जांपल देयर आर कंपनीज जिनका टर्नओवर 100 करोड़ है to a segment of, let's say, 5,000 crore. So this is the typical segment which is a huge segment, by the way, in India. Across the world, we see the similar trend. So जो Mobilize का जो segment है, जो client base है, वो क्लाइंट बेस कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की तरफ ज्यादा जाता है, क्योंकि वो लोग SAP, माइक्रोसॉफ्ट या जो बड़े सॉफ्टवेयर हैं, Oracle, इनको जब वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो लाइसेंस कॉस्ट उनके लिए बहुत ही एक हैवी एक्सपेंस क्रिएट हो जाता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली द स्पेस जो मोबिलाइज फिल करता है। मोबिलाइज और मोबिलाइज जैसे जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, वो उस स्पेस में जाकर के उनको कस्टम सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, स्केलेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, उनको टेलर्ड मेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं उनकी नीड के हिसाब से, जो ये SAPs ऑफ द वर्ल्ड नहीं कर पाते, या वो करते हैं तो उनकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि वो उन बिजनेसेस के लिए it's like a hole in the pocket. But this is exactly the strength of Mobilize. And the third is Mobilize customer service. We take pride on our customer service. We maintain SLAs. We have very strict SLAs and contracts with our client to ensure that the quality of the service is always maintained. And these are the features which keeps on helps us in maintaining relationship with our clients. Right. Can you put some light on some good names which you serve? I have seen in your presentation Adani. So how you serve Adani, and are there other players as well to whom you are serving? Yeah, I mean, I'll put a disclaimer before I proceed further. These are the clients that we serve as end users. So these are end users of our software. So, for example, we give our software to a very big, you would have heard of a company by the name Sodexo India Services Private Limited. Then there is a company by the name CLR. CLR is one of the major facility management company in this space. Now they offer our software to companies. Now, who these companies are, we have deployed our software in around 45 locations in Adani, Reliance Ports, then Google, Qualcomm, Danfoss, HCL, SAP, Capgemini, Microsoft. So these are best of the name of the word, and these are the places where our software is used. But the end users are basically the customers to our customer. So we serve them to our customers, not directly. Okay, perfect. Now I wanted to understand, if your company become very big, how will it look like? Like, who is the biggest player in your industry segment or your business? Yes. I mean, everyone has a dream to compete somewhere. I have got my product very tightly positioned to compete. So, for example, Opsuit is competing with IBM Maximo. IBM Maximo is a leader in enterprise asset management space. So I am directly competing with IBM Maximo. For HR, there is a solution by the name SAP SuccessFactors.
So my competition is with SAP SuccessFactors. For SCM Pro, we are competing directly with SAP supply chain solutions. So these are the target that I have set myself for. And EduPro is a very unique space. There are a lot of small, big players, but the complexity increases with the time, because the way that technology, I mean, you are already aware, sir. Government recently launched NEP, which is National Education Policy, and it was the biggest reform after 1968. It happened in 2024, और वो अब NEP इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो जो EduPro सॉल्यूशन है उसको हमें उसी हिसाब से इवॉल्व करना पड़ रहा है, और मोबिलाइज उसके लिए तैयार था। तो इस EduPro सॉल्यूशन एक डिफरेंट डोमेन में चलता है, लेकिन जो हमारे 3 सॉल्यूशंस हैं, ऑप्सूट कॉम्पीट करेगा मैक्सिमो से। अगर ये तीनों बड़ी कंपनियां हो जाती हैं तो ये अपने आप में मोबिलाइज 3 बड़ी कंपनी चला रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। परफेक्ट। सो ये आपके प्रोडक्ट का रिलेटिव एनालिसिस था। आपकी जैसी और कौन कंपनीज हैं, पीयर कंपनीज? फॉर द बेनिफिट ऑफ माय व्यूअर्स, आई कैन नेम अ फ्यू लिस्टेड प्लेयर्स जिनके साथ आप इस कंपनी का कंपैरिजन कर सकते हैं। वन इज इन्फिनिटी इन्फोवे, द सेकंड इज यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन, द थर्ड इज आईरिस IRIS RegTech solution. Can you give some inputs on the related peer companies which are listed or unlisted? I mean, this is a very important thing to always keep an eye on your peers, because this is exactly how you get your motivation for the purpose of two things. One is if you grow your product, what your product should benchmark with, because these players are already inventing and we are also inventing. बट प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं आपको बेंचमार्क कराना पड़ता है, बिकॉज मार्केट प्रैक्टिसेस में आपको एक कंपैरिजन क्रिएट करना पड़ता है। So, as you rightly mentioned, Unicommerce, for example, or Infinity Infoway. Now, Infinity Infoway operates in education domain, and they also offer ERP solution. They also offer CBT kind of solution. Our solutions also offer, but we are not directly competing in the sense that our solutions are more of AI enabled. Our focus area is K-12. Infinity Infoway is working in universities and colleges, whilst we are working in school segment right now. But we will gradually improve and go towards universities and colleges. That's how our peer comparison looks like. With respect to their PE multiples, I will leave it for viewers to decide. But we operate at a very nominal PE multiple, which leaves a very important, significant, value for our investors on the table to take benefit of. So that's a quick comparison, sir. To summarize, any SaaS company which is operating as a SaaS model in these domains can be compared. Ashish ji, please tell our viewers about the certifications or awards or recognitions which Mobilize have. Sir, Mobilize constantly strive for customer satisfaction. कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हमारा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है, और कस्टमर डायरेक्टली आपको अवार्ड नहीं करता, लेकिन छोटी छोटी मेल्स भेज के या फीडबैक देके आपको सर्टिफाई करता है। बट वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन आता कहाँ से है? वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन तब आता है जब आपके प्रोडक्ट लगभग वही आउटपुट डिलीवर करें हर बार जो उन्हें करना चाहिए। उसके लिए मोबिलाइज ने CMMI level 3, so which is a development practice certification. It is taken by software companies to standardize their development processes. Then we have taken ISO 27001, which is a security certification, and a company rigorously undergoes 123 odd security parameters is only when you can get ISO 27001. And third is we have also got ISO 9001, which is a typical certification for the purpose of process standardization. अदर देन दैट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन हो जाता है वो है हमारे सॉफ्टवेयर्स का VAPT सर्टिफिकेशन, विच इज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। VAPT जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट इंडिया ने करीब 220 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को चुना है जो सर्टाइन सर्टिफिकेशन दे सकती हैं। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, दे आर सर्टाइन सर्टिफाइड एंड VAPT सर्टिफाइड। सो दिस इज सो जब ये सारी प्रोसेसेस हम फॉलो करते हैं डेवलपमेंट की, प्रोडक्ट स्टेबल निकलता है, आउटपुट हर बार सेम आता है और सिक्योर आता है, तो क्लाइंट सर्टिफिकेशन या क्लाइंट सेटिस्फेक्शन अपने आप आता है। दीज आर द सर्टिफिकेट्स एंड
achievement that Mobilize has on table today. Perfect. Do you foresee any kind of risk or threat into your business going forward, like from finding good kind of employees, or finding some good clients which you want? Is there any threat in future? Yes, I mean हर इंडस्ट्री के अपने थ्रेट्स और रिस्क हैं. मोबिलाइज का एक बहुत मेजर, आई मीन इनफैक्ट मोबिलाइज की जो डिपेंडेंसी है वो स्किल सेट्स के ऊपर है. तो एक सही स्किल सेट मिलना, सही समय पे मिलना और सही जगह पे मिलना, ये बहुत जरूरी है. पहले मोबिलाइज फरीदाबाद बेस्ड, केवल फरीदाबाद में था. फरीदाबाद में टेक्नोलॉजिकल स्किल सेट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल था, तो कंपनी ने एक्सपैंड किया गुड़गांव में, एंड गुड़गांव इज एन आईटी हब. So we have mitigated that risk. And since we are also operating in Bangalore, because of Bangalore airport, we foresee that we will be able to get more people there. So that is one of the risks that we have identified and we have been able to mitigate it. With respect to clients, we are striving very hard. हमारी आउटवर्ड मार्केटिंग अभी शुरू हो चुकी है और हमें सक्सेसफुल लीड्स मिल रही हैं. तो हमें लगता है कि हम अपने क्लाइंट्स, नए क्लाइंट्स को ढूंढने का रिस्क भी जल्दी मिटिगेट कर लेंगे. Perfect. With this, I think we should come to a conclusion wherein investors are able to make their mind up about the company, and they can have now a lot of information about the business, so they can take a very calculated and what should I say? Balanced call. Call, yeah, on this. So for the investors, the IPO of Mobilize will open in February. We are still yet to announce the dates and the price band. It will be disclosed in the statutory advertisement, which will come in the newspapers, and we will keep on posting about the information about the IPO through different marketing channels. So for now, thank you very much. Thank you, Ashish ji. Thank Thanks you a so lot. much, sir. Thank you so much, sir. Namaskar.